Namaskar. My name is Yashi Pandey, and from today onwards, I will be your mentor for English to help you ace all the exams you are targeting in the year 2025. Namaskar, કેમથી આછો? ભલા રાછો? So, before you say that you are fine, let me introduce myself. I am Yashi Pandey and I have experience of more than 11 years in online teaching. और आज से हम आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश पढ़ाएंगे. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट क्लासेस, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैम मेरे को इंग्लिश बोलने नहीं आता, मैम आई कैन नॉट राइट इन इंग्लिश, मैम आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन इंग्लिश. देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम प्रिटी श्योर, who are really afraid of this language. You don't have to worry anymore. I am here. So before I start the class, I will first be focusing on Odisha Police SI examination. इस एग्ज़ाम में इंग्लिश आता है और आप लोगों को सबसे पहले इंग्लिश समझने के लिए कि क्या पढ़ेंगे मैम, आप क्या पढ़ाओगे हमें. इंग्लिश में तो बहुत कुछ है. इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर आप लोगों का vocabulary है. We have tons of reading comprehension. We have vocabulary and vocabulary is very broad. vocabulary में आप लोगों का idioms आ जाएगा, आप लोगों के spellings आ जाते हैं, आप लोगों के one word substitution आ जाते हैं, आप लोगों का synonym and antonyms आ जाता है. So there are tons of things in vocabulary as well. Then we have some grammar questions also. So ma'am, we have to read everything? No. इसीलिए previous year questions हम लोग solve करेंगे to understand English first. What kind of questions are asked? So I will be checking in the first 2 to 3 classes what is your progress and let me know. आप comment section में लिखना what is the area you need more improvement. Also, write down your scores after this class. So let us start your first question for Odisha Police SI exams. The first question is, choose one word substitution for the given phrase or expression. One who follows a socially unconventional way of life. One who follows an unconventional way of life. इनको क्या बोला जाता है? Unconventional मतलब they don't behave normally or they don't stay normally. They have a different way of living their life. Now let's see the examples. The first word is a bohemian and that is your answer, correct? Bohemian is a person whose way of living is unconventional. ये वो लोग होते हैं जो बहुत टाइम तक एक ही जगह पे नहीं रहते, ये अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं. सोशलाइट कौन लोग होते हैं? These are, आप लोगों ने बहुत सारे पार्टीज देखे होंगे, वहाँ सोशलाइट्स जाते हैं. सोशलाइट्स कौन होते हैं? Who spend a lot of time. They spend a lot of time in fashionable parties or circles. In fashionable circles. These are called socialites. Aesthete. आप लोगों ने aesthetic word सुना है? आप सब लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं, एस्थेटिक पिक्चर्स क्लिक करते हैं ना, अलग से उसका फिल्टर चेंज करके. एस्थेटिक क्या है? ब्यूटी. एस्थेट कौन हुआ? A person who likes beauty, है ना, who loves beautiful things. अगर आपको beautiful things पसंद हैं तो you have become an aesthete. Then you have the word pedagogue. Pedagogue से पहले pedagogy पढ़े हो. What is pedagogy? Pedagogy is a process of teaching, a method. Pedagogue is a teacher. Pedagogue कौन हुआ? A teacher. A person who likes teaching, one who likes to teach. Just like Yashi ma'am, she is a pedagogue. She loves teaching.
Okay, so our answer is a bohemian is a person who has a very different way of living his life, unconventional, not normal. If you are writing down your scores, let me know also. Okay, number 2, a small group of people having control of an entire country. What do we call a small group of people who have control of an entire country? Please try. Is everyone done trying? Okay. Let us read the question. Now, the statement says a small group of people. Now, सबसे पहला word है democracy. Democracy is a country like India. But India क्या छोटे लोग या छोटा सा ग्रुप मैनेज करता है क्या? नहीं. Democracy is where you have a definite institution जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन जनता आती है. ऑटोक्रेसी में वर्ड है ऑटो. ऑटो का मतलब होता है सिंगल, राइट? तो अगर, और क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट. सो इफ देयर इज अ सिंगल रूलर or there is an autocrat, there is a single rule government, it is called an autocracy. Oligarchy is where a small group of people, ये बहुत छोटे लोग होते हैं जो पूरी कंट्री को चला रहे होते हैं. oligarchy, ठीक है. a small group of people control a country, ठीक है. ये ग्रुप भी हो सकता है, it can be a small group also. another word is bureaucracy. ब्यूरोक्रेटिक होता क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. हाँ, so it means rules and regulations to run a country or an institution or an institution. इसको हम कहते हैं bureaucracy. Is that clear? So our answer has to be C. The word is oligarchy. ठीक है. Number 3. One word substitution. Someone who can be easily persuaded to believe something. एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप आसानी से कन्विंस कर सकते हैं. Persuade मतलब क्या होता है? Persuade means to convince. Okay. So he is a person you can convince to believe something. Easily convince हो जाता है. क्या बोलते हैं उसको? Is it done? Okay. There are already answers here. Credible किसको बोलते हैं? Who is a person who is credible? You should be very credible, है ना? You should be very credible to your parents. मतलब one that can be trusted और who can be trusted. कोई भी ऐसी चीज जिसको ट्रस्ट किया जा सकता है, it is credible. Okay? You are a very credible person. मतलब I can trust you. Okay? The next word is gullible. भोला भाला. You are a gullible consumer. मतलब हम तुमको कुछ भी बेच सकते हैं. You are भोला भाला बच्चा, है ना? So gullible is the answer of this question. जिसको कोई भी बरगला फुसला सकता है, बहला फुसला सकता है. You are the answer of my question. Gullible, भोला भाला. Malicious. Always remember the word mal is always negative. It is a root word. ठीक है. रूट वर्ड में mal से बना कोई भी वर्ड, जैसे कि malice, malicious, malevolent, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव होते हैं. एवरी वर्ड मीन्स intended
टू कॉज हार्म, अगर आप किसी भी चीज को चोट पहुंचाते हो, दैट इज मैलिस एंड दैट इज मैलिशियस. ही हैज गॉट मैलिशियस इंटेंशंस, मतलब उसके इंटेंशंस बहुत खराब हैं, वेरी बैड इंटेंशंस. Comprehensible. What is reading comprehension? Reading comprehension is where an unseen passage is given. You read the passage, you understand the passage, right? Comprehensible, that can be understood. That can be understood. So what is the answer of our question? One who can be easily persuaded, who can be easily convinced is gullible. The person is gullible. Is that clear? Next, number 4. An inactive state resembling deep sleep. ये किसको बोलते हैं? Please try. Is it done? Everyone done? Okay. Now let us come to each and every word. Okay. I said a state resembling deep sleep. सबने ट्राई कर लिया? सबने ट्राई कर लिया? ओके, आप मेरे को एक बात बताओ. स्लीप. अच्छा, हैव यू एवर हर्ड द पोलर बियर्स? पोलर बियर्स, नॉर्मल बियर्स, दे गो इन हाइबरनेशन, इन अ स्टेट ऑफ हाइबरनेशन. व्हाट इज दैट? हाइबरनेशन में क्या होता है, जो भी जैसे एनिमल्स होते हैं ना, वो कुछ 6 महीने का सामान स्टोर कर लेते हैं और फिर वो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं और वो सो जाते हैं, है ना, वही उनका नेचर है. सो क्या हम उनको बोल सकते हैं लेजी? ये एनिमल्स लेजी नहीं होते. एंड इंडोलेंट ऑल्सो मीन्स लेजी. नो, लेजी नहीं जाएगा. जैसे यू आर अ वेरी इंडोलेंट स्टूडेंट, तो हम बोल देंगे देखो ये बच्चा बहुत लेजी है. लोफिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कहीं पर भी इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम आइडली, टू स्पेंड टाइम इन एन आइडल वे, यू हैव नथिंग टू डू. तुम्हारे पास कोई काम है? इल, नो काम, नो वर्क. You have nothing to do. You're an idle children. You're an idle child. Answer is hibernation, where it is resembling deep sleep. So the answer has to be B. Is that clear? Out of 4 score लिखो number 5. Okay. एक ऐसा handwriting that is not clear enough to read. डॉक्टर की handwriting. One word substitution में an handwriting that is not clear enough to read. What should be the answer? Please try. Please try. हो गया? Okay.
आई थिंक मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दिया है टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स सी. When I say and handwriting that is not clear enough to read, what can be the writing? Eligible, you are an eligible bachelor. That means eligible हैं तो आप कैसे bachelor हैं? You are very qualified, है ना? जैसे you are eligible to give this exam, to give the police SI exam. That means you are qualified to give the exam. Okay? Legible, that can be easily read. That can be easily read. जैसे legible किसको बोला जाएगा? मैम your handwriting is very legible. मतलब I can read your handwriting. That means illegible means that cannot be read. That means eligible means something that cannot be read. डिसाइफरेबल किसको बोला जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इट इज एबल एंड इट मीन्स एंड एडजेक्टिव. ओके, डिसाइफरेबल इज एनीथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड. दैट कैन बी अंडरस्टूड. जैसे मैम योर क्लास इज डिसाइफरेबल. दैट मीन्स मैम आई कैन अंडरस्टैंड योर क्लास. ओके, आई वॉन्ट योर स्कोर्स चिल्ड्रन आउट ऑफ 5. ठीक है. सी ऑल ऑफ दीज आर वोकैबुलरी. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? हम हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द. मतलब देयर इज अ फ्रेज गिवन टू यू एंड देयर इज वन वर्ड यूज्ड फॉर दैट फ्रेज. सो ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो वोकैबुलरीज. यू विल हैव टू रीड देम केयरफुली. ओके, सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स इट्स वेल एंड गुड. नाउ कम्स द ईजीएस्ट सेगमेंट, idioms. What do you understand by to die in harness? What does that mean? Do you know? To die in harness मतलब होता है जैसे you are working for a company or maybe a person XYZ, वो एक कंपनी के लिए काम करता है और वो काम करते करते उसकी डेथ हो गई. उस लेबर की, उस वर्कर की डेथ हो गई काम करते वक्त. कोई बैंक में बैठा है, बैंकर है और कोई नोट छाप रहा है, तभी उसकी डेथ हो गई. तो जब आप अपने फील्ड ऑफ वर्क में आप काम करते करते आपकी डेथ होती है, तब हम कहते हैं द पर्सन हैज़ डाइड इन हार्नेस. सो ही इज़ नॉट डाइड इन वेन. वेन का मतलब होता है बिना मतलब मर गया. नो. ही हैज़ डाइड इन ऑनर. नो. टू डाई while he was in service. So the answer has to be C. To die for the motherland? No. That is called martyr. If you're dying for your motherland, तो आप martyr हुए. हिंदी में कहते हैं शहीद होना. ये होगा to die while in service. Number 7. Do not hold water. What is that idiom? Do not hold water. Your excuse does not hold water. What does that mean? It does not hold water. मतलब, ma'am, I cannot believe it. If your explanation does not hold water, मतलब मैं आप पे भरोसा ही नहीं करती. Cannot be held safely. वैसे भी पानी को you cannot hold safely. It cannot be carried. No. A dry riverbed. No. This is something which cannot be believed. ठीक है? Next. Beating about the bush. मैंने आपसे कहा सुनो कहाँ थे कल, तो तुम बोलोगे अरे मैम मैं यहाँ गया वहाँ गया एंड देन यू स्टार्टेड बीटिंग अराउंड द बुश. मैंने जो पूछा तुमने उसका आंसर नहीं दिया, बाकी तुम गोल 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 घूमते रहे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टू बीट अराउंड द बुश? इट मीन्स टू क्लियर द बुश बाय बीटिंग? नो. टू हाइड इन द बुश? नहीं. इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एम्बुश. आप वो एम्बुश होता है जब आप छुप के वार करते हैं. दिस इज नॉट एन आंसर. येस. टू अप्रोच अ सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट. मतलब गोल गोल घूम रहे हो लेकिन मुद्दे पे नहीं आओगे. दैट इज व्हेन आई से यू आर बीटिंग अराउंड द बुश. वाई डोंट यू कम टू द टॉपिक? टू बीट अ बुश रैंडमली, ऐसे ही किसी बुश को मारने लगोगे? नहीं. द आंसर हैज टू बी सी. ओके. नंबर 9. टू ब्रेक द आइस. याद रखिएगा ईडियम्स में कभी भी लिटरल मीनिंग्स नहीं होते. हम ईडियम्स में वो वर्ड्स यूज करते हैं जैसे मुहावरा, नाचना जाने आंगन टेढ़ा. व्हाट डज दैट मीन? कि तुमको डांस नहीं आता? नो. दैट मीन्स यू आर सेइंग
or you're talking about a topic you don't know, and you start hating everything just because you don't know. Everything cannot be bad, maybe it is good for someone else. So that's the how we use idioms. Okay, what is the answer of the idiom to break the ice? How do we use this? These are all previous year questions. ये सब previous year में आया था. Let's see. इसका मतलब होता है to do or say something to relieve tension when strangers meet. I'll tell you an example. You are sitting in a conference room, ठीक है, और माहौल एकदम टेंस है, एकदम सब टेंशन में है, कॉन्फ्रेंस में क्या होगा क्या होगा, एंड देन सडनली कोई एक बंदा बोल देता है हेलो एवरीवन, हाउ इज एवरीवन फीलिंग, एंड एवरीवन नाउ स्टार्ट्स टॉकिंग. ही ब्रोक द आइस. घर पे बैठे हो, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, पापा मम्मी एकदम बैठे हैं, आओ आओ बात करते हैं, है ना, और एकदम तुम कमरे में घुसे, सब चुपचाप तुम्हारा मुंह देख रहे हैं, है ना. फिर तुम बोले मम्मी पापा मैं तो पास हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? आई ब्रोक द आइस. यू हैव रिलीव द टेंशन इन द रूम बाय इनिशिएटिंग अ कॉन्वर्सेशन. इट डज नॉट मीन यू पुट आइस क्यूब्स इन अ ग्लास. नो. टू मेक अलायंस, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन. नो. टू हैव अ ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है पीस. पीस टॉक विद द एनिमी. नो. ट्रूस मीन्स अ पीस टॉक. एब्सोल्युटली नो. द आंसर हैज टू बी ओनली ए. Number 10. Okay, next. Choose the appropriate meaning of the following idiom. Out of the woods. Finally, you are out of the woods. What does that mean? Woods क्या होता है पता है आपको? Wood मतलब लकड़ी. लकड़ी, लकड़ी. Okay, it is wood. From that, what you get from tree. And woods matlab, this is also a noun and this is also a noun. This means forest. ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, forest is a safe place? No ना. Imagine you're out of the woods, मतलब you are out of danger. It's not that you are out of workplace, आप workplace से बाहर नहीं हो, forest area से बाहर, ये तो real meaning हो जाएगा. हमको इसका idiom meaning पूछना है. One who is out of one's comfort zone, nahi, you're out of danger. Finally, you're out of the woods after 2 years. That means you're out of danger after 2 years. Okay? Next, number 11. Now, we will be doing some words or sentences where you need to fill some prepositions. ये थोड़ा ट्रिकी होगा, ठीक है. वैसे तो मैं आपको टॉपिक में इसका टॉपिक पढ़ाऊंगी पूरा, बट क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है और मैं आपको चेक कर रही हूं, तो आप मुझे बताओ इसका आंसर आपको क्या लगता है. द बुक कंप्राइजेज डैश 5 चैप्टर्स. दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बाय द वे. ये क्वेश्चन हिसाब से गलत है, पता है आपको. दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रॉन्ग. ये एग्जाम में भी गलत पूछा है. आई टेल यू व्हाई. एक्चुअल में कंप्राइजेस इज इक्वल टू कंसिस्ट्स ऑफ. कंप्राइजेस इज इक्वल टू कंसिस्ट्स ऑफ. कंप्राइजेस के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता. बट क्या नन कोई ऑप्शन है? नहीं. दिस बुक कंप्राइजेस, आपके पास कोई ऑप्शन बचा? नहीं. अब आप यहां गलत नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है नन का. अबाउट नहीं हो सकता, विथ नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता. इस बुक में 5 चैप्टर हैं. दिस इज व्हाट द सेंटेंस वांट्स टू से. ऑल बट ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्ट्स ऑफ होता है. कंप्राइज के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज सेंटेंस में नहीं करते. लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन. Please try question number 12.
Is everyone done trying? Okay, now let us see the question. Yes, he was not ashamed at asking for money. No, he was not ashamed of asking. हमेशा याद रखिएगा, you are ashamed of something, है ना. तो यहां वो something क्या है? Asking for money. He was not ashamed from तो हो नहीं सकता, of होगा, to हो नहीं सकता. He was ashamed of asking for even more money. Okay. Number 13. My sister was not required to conform dash the traditional ways of her husband's family. जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैम मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आ रहा या ग्रामर बेस्ड हम क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर पा रहे, आप लोग क्लासेस रेगुलरली करना और बेसिक्स बिल्कुल मत स्किप करना. दिस इज अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन. फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है कि आप इसमें यही, इस वर्ड के साथ यही प्रेपोजिशन जाएगा और कोई प्रेपोजिशन नहीं जाएगा. माई सिस्टर वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्फॉर्म. कॉन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? टू ओबे. ओके, सो कॉन्फॉर्म ऑलवेज फॉलोज टू, ये हमेशा याद रखिएगा. जैसे हम अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगाते हैं, अकस्टम्ड के साथ टू लगाते हैं, है ना, कंसिस्ट्स के साथ ऑफ लगाते, वैसे ही कॉन्फॉर्म टू लगाते हैं हमेशा. वेन एवर यू विल बी यूजिंग इट, कॉन्फॉर्म फॉर नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, इन नहीं होगा. दैट मीन्स शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओबे टू द ट्रेडिशनल वेज ऑफ हर हस्बैंड्स फैमिली. मेरी सिस्टर्स को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिए जाते ओबे करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर. Conform always takes two. Next, number 14. Mr. Nambir is thoroughly disillusioned dash his job. What should be the answer? Please try. Everyone. See, put words. देखो आप लोग words put करके देखो, आपको आंसर क्या लगता है? Okay, is everyone done? Let's have a look. Mr. Nambir is thoroughly disillusioned dash his job. Disillusioned what? From his job? No. Illusion क्या होता है? छलावा. जब भी आप बोलते हो if you are disillusioned at your job, that means you are very dissatisfied. Ma'am, I am very dissatisfied with my job, very disheartened. हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन जॉब से कुछ और हो, but you were disillusioned at your job, not with your job, not of his job, at his job. That means he was dissatisfied when he was going to work, not with his work. वो अपने पूरे जॉब प्रोफाइल से satisfied नहीं था, इसीलिए disillusioned at his work. Clear? The answer has to be D. Next question. During economic recession, one should avoid spending money dash luxury items. During economic recession, one should avoid spending money. You spend money on something, है ना? So at luxury items नहीं होगा, for नहीं होगा, with नहीं होगा, on items, on luxury items. You should stop or avoid spending money at items. No, on the items, on all luxury items. Clear? It has to be A. Number 16. Priyanka Chopra has played the role of dash FBI agent in Quantico. This rule is very very tricky. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस रूल में. I'll tell you how.
ओके, A, E, I, O, U. What will this use? A vowel. ये वॉवल्स हैं, वॉवल के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एन. और इफ वी हैव अ वॉवल साउंड, इवन देन वी यूज एन. यस और नो? कॉन्सोनेंट्स के साथ जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इनके साथ हम ए यूज करते हैं, राइट? एफ बी आई एजेंट, एफ बी आई एजेंट, ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, तो ये एफ का जो प्रोनाउंसिएशन है, इट इज अ वॉवल साउंड. तो अगर वॉवल साउंड है तो ए जाएगा? नो. द जाएगा? नो. द आंसर इज द रोल ऑफ एन एफ बी आई एजेंट इन क्वांटिको. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना एन आवर, HOUR. वाई? बिकॉज एच यहां पर साइलेंट है, सुनने में आ रहा है आवर, OUR. एच का प्रोनाउंसिएशन आवर जैसा ना, आ. सी, एन आवर, बिल्कुल वैसी NFBI एजेंट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच न्यू वर्ड हैज डैश मीनिंग. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो, डी से स्टार्ट हो रहा है. किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से. तो डी क्या है? कॉन्सोनेंट है. इजी. कॉन्सोनेंट के साथ क्या जाएगा? ए. ईच न्यू वर्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग. एंड डिफरेंट, द डिफरेंट और नन ऑफ द अबव जा नहीं सकता. इज इट क्लियर? Shall I proceed? Okay. Any problem ना? अगर कोई क्लास में आता है और प्रॉब्लम है, प्लीज बताना. ओके. नेक्स्ट. He is dash one-eyed man. वैसे ये फ्रेज है. वन का प्रोनाउंसिएशन व से आ रहा है ना. वी, वन आइड मैन है ना. अ $1 रुपी या अ $1 रुपी, अ वन, यहां ए आएगा, एन नहीं आ सकता क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वी, कॉन्सोनेंट साउंड है. तो अगर वॉवेल साउंड के लिए एन जाएगा तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या जाएगा? ए जाएगा. इजी. अ वन आइड मैन, वो एक ही आंख से देख सकता है. ही इज ब्लाइंड इन अनदर आई. अ वन आइड मैन. ओके. I have got dash close friends that I meet regularly. This is the concept of adjective. Okay, let me just check. Let's come. Do you know the difference between few and little? A few and a little. The few and the little. Do you know the difference? पहले हमेशा याद रखना, हमेशा, ऑलवेज. ठीक है? क्या? लिटिल और अ लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ जाएगा. फ्यू नंबर्स के लिए जाता है, तो इसका मतलब फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए जाएगा. यस और नो? जिसको काउंट कर सकते हो, जैसे फ्यू बुक्स, जिसको काउंट कर सकते हो आप, वही तो काउंटेबल हुआ. जैसे फ्यू बुक्स, फ्यू फ्रेंड्स, है ना. लेकिन 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 लिटिल, लिटिल के लिए क्या जाएगा? मे बी फॉर लिटिल वी कैन यूज लिटिल मनी.
मनी अनकाउंटेबल है, जा सकता है ना. लिटिल करेज अनकाउंटेबल है, करेज जा सकता है. अब यहां पहले समझो क्या होगा. ठीक है, फ्रेंड्स लिखा है, मतलब फ्रेंड्स आर काउंटेबल है, तो लिटिल जाएगा क्या? नो मैम, लिटिल तो नहीं जाएगा, तो हटा दो, लिटिल हटा दो, 2 ऑप्शन हट गए. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शन, ए दैट इज फ्यू एंड दूसरा इज अ फ्यू. इसमें क्या जाएगा? I have got few friends that I meet regularly. Friends are more than one. Few का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, और a few का मतलब होता है उससे थोड़ा ज्यादा, यानी पॉजिटिव. सेम कॉन्सेप्ट विद लिटिल. लिटिल मीन्स नेगेटिव, a little means पॉजिटिव. सेम कॉन्सेप्ट, नो डिफरेंस. बस इतना डिफरेंस है कि ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है. अच्छा आप बताओ, आपके पास एक भी फ्रेंड नहीं होता तो हम बोलेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. एक भी नहीं है, ना के बराबर. आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब कुछ तो 1 2 4 हैं, तो यहां पर भी उसके पास कुछ फ्रेंड्स हैं. सो आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स दैट आई मीट रेगुलरली, जिनसे मैं हमेशा मिलता रहता हूं. इज इट क्लियर? एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देन द फ्यू? मतलब द फ्यू मतलब जितना है सफिशियंट है. द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव आर वेरी गुड, मतलब जितने भी फ्रेंड्स मेरे पास हैं सब बहुत अच्छे हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल? नथिंग. फ्यू मीन्स नेगेटिव, लिटिल मीन्स नेगेटिव. अ फ्यू पॉजिटिव, अ लिटिल पॉजिटिव. बट लिटिल इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल, फ्यू इज यूज्ड विथ नंबर्स और काउंटेबल नाउन्स. ओके, I hope you are enjoying the session, children. Next, number 20. We decided to abandon our trip as we had dash money left. Now you tell me the answer. We had dash money left. अब आप मनी को काउंट कर सकते हैं क्या? मनी या वेल्थ? दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, राइट? अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू जाएगा? नो, हटा. हमको ट्रिप कैंसिल करना पड़ा, तो ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है ना. पैसा नहीं है तो ट्रिप पे भी नहीं गए, है ना. गोवा का ट्रिप सब बना रहे, जा रहे हैं क्या? नहीं. सो वी डिसाइडेड टू अबैंडन आवर ट्रिप एज वी हैड लिटिल मनी लेफ्ट. क्यों? क्योंकि लिटिल इज नेगेटिव. अगर अ लिटिल लगा देते तो ये पॉजिटिव हो जाता, तब तो फिर हम ट्रिप पे चले जाते. जैसे आई नीड अ लिटिल मनी टू विजिट उड़ीसा बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द जगन्नाथ टेम्पल. आई वॉन्ट टू कम टू उड़ीसा बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द जगन्नाथ टेम्पल, द जगन्नाथपुरी टेम्पल. ओके, सो आई नीड अ लिटिल मनी, थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए. ओके, सो द आंसर फॉर योर क्वेश्चन हैज टू बी सी. आई होप इट इज क्लियर. Everyone. Next. Abhimanyu was dash engrossed in his book even to look up. This is actually very easy. Try. इज एवरीवन डन? ओके, अब भी देखो एक पेयर सिखा रहे हैं. बोथ अगर सेंटेंस में दिख जाएगा तो याद रखना उसके साथ हमेशा एंड जाता है. डबल टू के साथ हमेशा टू जाता है. अब बताओ यहां पे टू लुकअप है ना. यू आर टू फैट टू रन. देखो मतलब आप इतने फैट हो कि आप रन नहीं कर सकते. अभिमन्यु वॉज वेरी एनग्रॉस्ड इन हिज बुक. नहीं. वॉज मच एनग्रॉस्ड इन हिज बुक. ही वॉज टू एनग्रॉस्ड इन हिज बुक टू इवन लुक अप. वो ऊपर भी नहीं देखा. वो एनग्रॉस्ड मतलब यू वर डीपली एकदम इनटू इट.
जैसे आई एम एनग्रॉस्ड इन माई स्टडीज, मतलब अगल बगल क्या हो रहा है तुमको नहीं पता, तुम सिर्फ पढ़े जा रहे हो, यू आर एनग्रॉस्ड. ठीक है, सो द आंसर हैज टू बी सी. आई होप इट इज क्लियर. 22. Dash, my brother who does not like thrillers enjoyed the film. मेरा भाई है ना जिसको थ्रिलर पसंद नहीं है, उसने भी मूवी इंजॉय करी. तो तुम क्या बोल रहे हो? एक्स्ट्रा एड ऑन इंफॉर्मेशन है ना. अलोन माई ब्रदर, अलोन मतलब तो अकेला. नो, इवन माई ब्रदर, मेरा भाई भी जिसको थ्रिलर नहीं पसंद है उसको भी मूवी अच्छी लगी. ओनली माई ब्रदर, दो माई ब्रदर, दो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन में है. ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होता है. सॉरी, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन. दिस इज यूज फॉर कॉन्ट्रडिक्शन. यहां कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. मेरे भाई को मूवी नहीं पसंद, इवन माई ब्रदर हु डज नॉट लाइक थ्रिलर्स enjoyed the film. The answer has to be B. Clear? 23. Eulogize. इसका opposite चाहिए. I want an antonym of the word eulogize. मैम हमको तो वर्ड ही नहीं पता, पता ही नहीं कैसे करेंगे, है ना. टू दोज हु डोंट नो आई विल हेल्प. यूलोजाइज क्या होता है? दिस मीन्स यू आर हाईली प्रेजिंग समवन. जब आप बहुत किसी की तारीफ करते हो, प्रेज मतलब अपलॉड, व्हेन यू लॉर्ड समवन, है ना, दैट इज यूलोजाइज. मैम वी यूलोजाइज the state Puri. That means we are very proud of our state. ठीक है, of the Odisha culture. Ma'am, we eulogize our culture. That means we are very proud, we are very happy about our culture. Okay? तो अगर eulogize का मतलब होता है praise करना, तो opposite क्या होगा? बुरा है. That means criticize करना. Celebrate positive word है. eulogize positive हो गया. ठीक है. Extol, एक्सटोल मतलब तो वेरी हाईली प्रेज, एक्सेसिव प्रेज, ये भी सिनोनिम हो जाएगा. हमसे क्या पूछा है? ऑपोजिट. क्वेश्चन करना मतलब सवाल उठाना. आवर आंसर इज ओनली वन, क्रिटिसाइज. एक्सटोल मतलब तो जरूरत से ज्यादा तारीफ. अगला वर्ड है रेलिश. रेलिश का ऑपोजिट मीनिंग चाहिए. व्हाट कैन बी द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड रेलिश? Please try. It's a very easy word. Do you know what is relish? Relish means to enjoy, to like something, to enjoy something. Opposite क्या होगा? To not enjoy. Simple answer, dislike. Gusto क्या होता है? Gusto का मतलब भी होता है to do something with enthusiasm. अगर आप किसी चीज को enthusiasm से कर रहे हो, एनर्जी के साथ कर रहे हो, तो हम गस्टो बोलते हैं. सेवर का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी टेस्टी. समोसाज आर वेरी सेवरी. आई हैव सेवर्ड ऑल द समोसाज. आई लव ईटिंग समोसाज. अटैक तो जाएगा नहीं. लाइक का ऑपोजिट होगा डिसलाइक. सिंपल. ठीक है. 25. द वर्ड इज ब्रिटल. आपको मुझे ब्रिटल वर्ड का ऑपोजिट देना है. Try. You know what is brittle? First, brittle बताओ. Brittle is anything that can be broken easily. इतना पतला सा लड़का दिखा, अरे your bones are very brittle, धक्का दे देंगे टूट जाएगा. Brittle क्या होता है? Rose petals. इतने सॉफ्ट होते हैं, brittle. तो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा क्या है, डेलिकेट है,
समथिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन. अगर ये ब्रिटल है तो ऑपोजिट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग. वीक आएगा? नहीं मैम, वीक तो इसका सिनोनिम होगा. ये तो हफ्ता वाला वीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाला. नो. देन यू हैव अनदर वर्ड फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब भी होता है वीक, कमजोर. ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा. बट फॉर्मिडेबल, समवन हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, हु शोज फर्मनेस. फॉर्मिडेबल, ही इज अ फॉर्मिडेबल एनिमी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी है. ठीक है. ऑपोजिट क्या होगा? फॉर्मिडेबल. इज दैट क्लियर? अगला वर्ड है, आपको मुझे करेक्ट स्पेलिंग देनी है ऑफ द वर्ड डायलेमा. और फिर आप मुझे, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप मुझे इसका मीनिंग भी बताएंगे. बताइए डायलेमा क्या होती है? वेरी करेक्ट. आई थिंक मोस्ट आंसर्स आर हियर. चलिए हम आपको बताते हैं डायलेमा होता क्या है. DILEE नहीं, डबल एल नहीं होता है, डबल एम होना चाहिए, ये भी गलत है. आंसर होगा ये डायलेमा. और इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. इज दैट ओके? इसको हम डायलेमा कहते हैं. सॉर्टेड है. इसको हम लोग डिफिकल्टी बोल सकते हैं, प्रेडिकामेंट बोल सकते हैं, अ पजल्ड स्टेट बोल सकते हैं. यू आर इन अ वेरी पजल्ड स्टेट, यू आर इन अ स्टेट ऑफ प्रेडिकामेंट. ठीक है, इसको कहते हैं डायलेमा. मैम आई एम इन अ डायलेमा ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. क्लियर? द आंसर इज डायलेमा. 27. आप बताइए करेक्ट स्पेलिंग कौन से वर्ड का है? ओकेजनली. क्या होगा? OCCASS नहीं, OCCASIO है ना, फिर NALLY. तो OCCASIONALLY दिख गया. यहां पर भी डबल एस है, गलत है. यहां पे भी डबल एस है, गलत है. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओकेजनली. ओकेजनली का हिंदी में मतलब क्या होता है? कभी कभी. दैट मीन्स रेयरली, नॉट ऑलवेज. नॉट ऑलवेज. मैम आई विजिट द टेम्पल ओकेजनली, मतलब आई विजिट द टेम्पल कभी कभी, रेयरली. ओके. आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 27. नेक्स्ट आप बताओ स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मिलेयू. एंड देन द मीनिंग ऑल्सो. मिलियू क्या होता है? ओके हो गया. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज अ नाउन और आप बात कर रहे हो MILIEU की. इसको कहते हैं मिलियू. ठीक है. दिस मीन्स द सोशल एनवायरनमेंट. ये एक सोशल एनवायरनमेंट होता है. ठीक है. दैट यू वेर यू वर्क, जहां पे आप काम कर रहे हो. ठीक है. तो हम इसको बैकग्राउंड भी तो बोल सकते हैं ना. दिस मीन्स ऑल्सो सेटिंग. दिस इज माई सेटिंग, दिस इज माई बैकग्राउंड, है ना. दिस इज कॉल्ड मिलियू. इट्स नॉट मिलियू. इसमें ई मिसिंग है, EU होना चाहिए. ए नहीं आएगा. B इज द आंसर. इज दैट क्लियर? यस और नो? इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है. चलो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. परेशान नहीं होना है. ठीक है. अगला वर्ड है 20. अच्छा, स्पेलिंग ही बताना है. अकोमोडेट. दिस इज वेरी इजी. जस्ट रीड. जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे,
जितना आप इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे, सेक्शनल मॉक लगाओगे, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा. बस पेशेंस रखना है ना. रोज क्लास करनी है. चलिए, अकोमोडेट. देखो, पहले तो जो नहीं जाएगा वो हटा दो. DATT कभी होता है? नहीं. एक्को, ACCO, मो, MOO, फिर DATE. ये आंसर मेरे को सबसे सही लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे डबल M नहीं है और यहाँ पे डबल C नहीं है. ये भी गलत, ये भी गलत. तो आंसर क्या होगा? इट हैज टू बी ओनली D. आई होप इट इज वेरी क्लियर चिल्ड्रन. I hope it is very clear. Sorted. I want your scores out of 29. Next question. आपको मुझे placate word का similar meaning देना है. Placate word का similar meaning. Let's see. A lot of you don't know the word. Revise, है ना. कैसे करोगे? Placate क्या होता है? Placate parts of speech में it is a verb. To placate. It means किसी को भी pacify करना, किसी को भी काम करना, किसी को soothe करना, placate करना. ये होता है pacify, placate. ठीक है? pacify करना, शांत. मैम, you tried to placate us. मैम, आपने हमें शांत कर दिया, हम नर्वस हो रहे थे. ओके. इंस्टिगेट इसका ऑपोजिट मीनिंग, एंटोनिम हो जाएगा. इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को भी एक्साइट करना, इंसाइट करना, उकसा देना, है ना, आग लगा देना, एड फ्यूल टू फायर. इंस्टिगेट. मैम, यू आर इंस्टिगेटिंग अस टू स्टडी मोर एंड मोर, है ना. यू आर एडिंग फ्यूल टू फायर. पैम्पर करना, प्यार करना. यू आर पैम्परिंग अ चाइल्ड, यू लव अ चाइल्ड, है ना, उसका ख्याल रखना, केयर करना. प्रॉमिस, यू नो व्हाट इज प्रॉमिस. यू हैव टू प्रॉमिस मी टू कम एवरी डे फॉर इंग्लिश सेशंस. द आंसर हैज टू बी ओनली B. इट इज पैसिफाई. आई होप इट इज क्लियर. ओके. सो दीज वर द फर्स्ट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर. अब आपने देख लिया कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं आते. मतलब हमें थोड़ा वोकैबुलरी रीडिंग करना है. अभी तो आपकी अगली क्लास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर भी होगी. ऐसे हमने क्या सीखा कि हमें थोड़ा टाइम देना होगा. सेशंस में हमें थोड़ा सा और डेडिकेटेडली बैठना पड़ेगा. आप बेसिक्स की क्लास जब स्टार्ट होगी तो मिस मत करिएगा बस. इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी टॉपिक एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट ईजियर फॉर यू गाइज. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड.